السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ایسی کہانی سنانے کے لیے آیا ہوں کہ وشواس نہیں ہوتا کہ کس پر وشواس کیا جائے۔ آج اس فرفتن دور میں یہ یقین نہیں ہو پا رہا ہوں، یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں کس پر وشواس کروں، کس پر نہ وشواس کروں۔ ساری دنیا کا یہی مسئلہ بنتا چلا جا رہا رفتہ رفتہ کہ ہر آدمی اسی کشمکش میں کس کو اپنا سمجھا جائے، کس کو بیگانہ سمجھا جائے۔ ایک روبی نام کی لڑکی جس نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ وہ روبی جس کا شوہر اسے دل و جان سے چاہتا تھا، بڑا پریم تھا دونوں کے اندر، جیون ساتھی تھے، قسمیں جینے مرنے کی کھائی تھی، لیکن کون جانتا تھا اس کی پریم کا اسی کی قاتل بن جائے گی۔ آج دنیا میں انسان جس کے خاطر نوجوان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، آج وہی لوگ نوجوانوں کی جان لینے پر تلی ہوئی ہے۔ روبی نام کی لڑکی جس نے اپنے شوہر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سوٹ کیس میں بند کر کے باہر پھینک دیا۔ ایک عجیب کہانی ہے، سنو گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، بڑا افسوس لگتا ہے، اور یہ طے کرنا اپنے آپ میں مشکل پڑ رہا ہے کہ اس دنیا میں کس پر وشواس کیا جائے، کس کو اپنا کہا جائے، کس کو بیگانہ کہا جائے، کس کے ساتھ دیا جائے، کس کا ساتھ چھوڑا جائے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس بات کو، اس بیان کو سننے سے پہلے میری ایک بات کو یاد کر لینا، اگر کیوں نہ تمہاری جوزہ کیوں نہ ہو، یعنی تمہاری بیوی کیوں نہ ہو، تمہاری بیگم کیوں نہ ہو، اگر کوئی ایسی خطرناک گھٹنا دیکھ رہے ہو، اگر اس کا رویہ کچھ طریقے سے دیکھ رہے ہو تو فوراً اس سے سترک ہوشیار الگ ہو جانا۔ اگر نہیں الگ ہوگے تو تم بھی سوٹ کیس میں ہی بند ملو گے، وہ بھی کئی ٹکڑوں کے ساتھ۔ آج اس دور میں بڑے حالات خراب ہیں، کیونکہ جو وہ بیوی جس پر پوری زندگی قربان کرتا ہے انسان، جس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، آج وہی اپنی نفسانی خواہش کو بجھانے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے دل کے اندر بیٹھے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے بہترین شوہر کو بھی قتل کر دیتی ہے۔ اس شوہر کو جس کے لیے ساری تکلیفیں اٹھاتا ہے، ساری محنتیں مشقتیں کرتا ہے، اس کو بھی قتل کرنے میں اس کو حیا نہیں آتی۔ تو اس دور میں کس پر بھروسہ کیا جا سکتا، کس پر وشواس کیا جاتا؟ یہ روبی نام کی لڑکی، یہ بہت زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، اس کی شادی، اس کا شوہر بڑا اچھا تھا اور جوتوں کی دکان تھی، بزنس مین تھا، پیسہ کماتا تھا، خوشحال تھا، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ پاتا ہوگا۔ روبی خوش نہیں تھی اس سے، اپنی اندرونی کھانے سے کون سی اس کے اندر ایسا فالٹ تھا، ایسی کمی تھی جس کے بارے میں کھل کے نہیں بتایا گیا، مگر اس کی بیوی پہلے سے ہی یہ حرافہ تھی، بگڑی ہوئی تھی۔ آج اس دور میں بہت حالات خراب ہیں، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اچھے گھرانے میں جس کی شادیاں ہوتی ہیں، جن کی بیویاں اچھی ملتی ہیں، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے نہیں۔ اکثر آج کے حالات ایسے ہیں جن کے خاطر نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ ایک دور ایسا ہوا کرتا تھا کہ کوئی میاں بیوی میں لفڑا ہوتا تھا تو شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا تھا، آج بیوی اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہے۔ آج کا اتنا پرفتن دور، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں، لیکن جب بیوی نڈر ہو جاتی، جب اس کے اندر سے ڈر ختم ہوتا ہے تو سمجھ لینا کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب عورت بدزبان ہو جاتی ہے، اپنے شوہر سے آنکھیں ملا کر زبان دراز کرنے لگتی، تو یہ سمجھ لینا کہ اس کے پیچھے کسی غیر مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ عورت کی زبان جب دراز ہوتی ہے تو وہ اپنے بلبوتے پہ کچھ نہیں کرتی، بلکہ اس کے پیچھے اس کے دوسرے لوگوں کو، غیر محرم کے ہاتھ ہوا کرتے ہیں۔ ایسے یہ روبی یہ اتنی دلیر نہیں تھی، نہ کوئی بہت بڑی بہادر تھی، نہ اپنے گھر سے بہت زیادہ امیرزادی کسی امیر کی بیٹی تھی، بلکہ یہ بھی اپنے گھر سے غریب تھی، نہ یہ بہت دلیر تھی۔ صرف دو لڑکوں کے ساتھ اس کی ایک دوستی ہو گئی، یعنی اس کے گھر میں، روبی کے گھر دو لڑکے آتے جاتے تھے، اس کا شوہر
दुकान पे काम करता था, देर से लौटता था। ये लोग अपनी खुशहाली और दुनिया की रंगोलियों में डूबे हुआ करते थे। उसके शौहर ने कई मर्तबा इस चीज को देखा, देखने के बाद नजरअंदाज कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरी वजह यह थी कि मेरे घर की कहीं बेइज्जती ना होनी पाए। वो जानता था अगर हम तनाजा आपस में करेंगे तो हमारे घर में बिगाड़ होगा, क्योंकि शौहर जानता था, मियां जानता था कि हमारा ही नुकसान होगा अगर हम कुछ करते हैं तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। उसने अपनी शरीके हयात अपनी बेगम रूबी को समझाने की बड़ी कोशिशें की, बहुत कुछ समझाया, लेकिन नहीं समझी। एक रोज ऐसा हुआ कि उसका शौहर दुकान थोड़ा रात में बंद करके अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखा कि वो ये दोनों लड़के उसकी बीवी के साथ बैठे हुए हैं। किस पोजीशन में थे वो पोजीशन बताने के भी लायक नहीं है। जब उसने इस हालत में देखा, देखने के बाद उसको बड़ा गुस्सा आया तो उसने अपनी बीवी पर, रूबी पर हाथ उठाया। तो रूबी खुद बयान देती है कि मैंने उसको, अपने शौहर को कैसे कत्ल किया। जब उसने अपनी बीवी को हाथ उठाया, जब हाथ उठाने के बाद रूबी कहती है कि मैंने एक रॉड मेरे घर में पड़ी हुई थी लोहे की, मैंने उसको उठाया और पीछे से अपने शौहर के सिर पे मार दिया। जैसे रॉड को मारा, शौहर गिर गया। उसके बाद ये दो लड़के थे, इन दोनों ने मिलके इसको कत्ल कर दिया। अब एक गैरों के खातिर जिसने अपने उस शौहर को कत्ल कर दिया, जो दिन रात मिन्नतों मजदूरी करके उसका पेट पालता था, उस शौहर को कत्ल कर दिया जो जिसके खातिर रात दिन, दिन को रात नहीं, रात को दिन नहीं समझता था। चाहे गर्मी का दिन होता, चाहे गर्मियों की रात होती, चाहे सर्दियों का दिन होता, चाहे सर्दियों की रात होती, जिसने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, जिसकी खुशहाली के लिए मेहनत करके उसके पेट को पालता था, उसकी खुशहाली के लिए उसके सारे शौकों को पूरा करता था, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना घर परिवार खुशहाल रखने के लिए सारे ये काम करता था। लेकिन उसी बीबी ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया। सिर्फ दो लड़कों की खातिर कत्ल हो गया। होने के बाद इसने उसके कहती है कि मैंने अपने शौहर को जब कत्ल किया, उसके बाद मैंने सोचा अब इस लाश को किस तरीके से अंजाम दिया जाए, कहां डाला जाए, किस तरीके से किया जाए। कहती थोड़ी देर के लिए हमारा दिमाग खराब था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहीं पकड़ी ना जाऊं, और पकड़ गई तो पुलिस केस होगा, जेल काटनी पड़ जाएगी, किस तरीके से किया जाए। तो कहती मेरे जहन में एक मिशन आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, पूरी रात मुझे लग गई, मैंने अपने शौहर के, अपने आदमी के छोटे छोटे टुकड़े किए, छोटे छोटे हाथों के कई टुकड़े किए, एक बाजू के 10 टुकड़े किए, पूरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, खन दिए। खनने के बाद एक सूटकेस में, कहते मेरे पास सूटकेस था, मैंने अपने शौहर का छोटे छोटे टुकड़े करके उसी सूटकेस के अंदर पैक कर दिया और वो सूटकेस ले जाकर जाकर थोड़ी दूर पर एक नदी तालाब था उसी में फेंक दिया। अब उधर से एक पुलिस की गाड़ी गुजरी तो उसने एक सूटकेस को पड़ा देखा जिसमें मक्खियां भिनभिना रही थी, बदबू आ रही थी, क्योंकि बेहतरीन सूटकेस था। और कोई जानता है कि उस सूटकेस में कोई कुत्ते बिल्ली की तो बॉडी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई जानवर की बॉडी तो सूटकेस में कोई फेंकेगा नहीं। कि पुलिस वाले होशियार होते, पढ़े लिखे होते, समझ गए किसी इंसान की इसमें बॉडी होगी। पुलिस वालों ने जैसे उस सूटकेस को खोला तो क्या देखा, एक सड़ी हुई लाश जिसमें एक मर्द के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े सूटकेस के अंदर बंद हैं। अब पुलिस वालों ने सोचा ये मेरे क्षेत्र का इलाका है, ये किसकी बॉडी होगी, किसने मारा होगा। तो उसने कहा देखो कोई ऐसा गुमशुदा हो जिसकी रिपोर्ट थाने में आई हो, उसके बारे में तलाश करो। तो देखा गया तो एक रिपोर्ट थी जो एक गुमशुदा के लिए थी, तलाश करने के लिए थी। तो पता चला कि देखा जाए कौन है, तो उसको जिसने वो रिपोर्ट डाली थी थाने के अंदर उससे संपर्क किया गया। नहीं, वो रिपोर्ट भी रूबी ने डाली थी। उस रूबी के पास पुलिस पहुंची और कहा कि तुमने किसी गुमशुदा शख्स की रिपोर्ट थाने में लगाई। तो उसने कहा मेरा शौहर कई दिनों से गायब हो चुका है, नजर नहीं आता, इसलिए मैंने रिपोर्ट थाने में दी थी ताकि मेरे शौहर को तलाश किया जाए। तो पुलिस वालों ने कहा कोई उसकी निशान नहीं दो। तो उसने कहा कोई निशानी तो मेरे पास उसकी नहीं, बाकी ये सब पूरा घर है, सब कुछ है, मगर क्या मैं निशानी दूं, मैंने तो जाते वक्त भी उनको नहीं देखा, कौन से कपड़े पहने, क्या है क्या नहीं है। तो पुलिस वालों ने कहा ऐसा करो तो अपने शौहर का कोई मोबाइल में कोई तस्वीर वगैरह दिखाओ, कैसी थी, उसका नाम क्या था। तो उसने मोबाइल दिया तो मोबाइल में बहुत सारी तस्वीरें देखी, बहुत सारी तस्वीरें देखी गई।
तो किसी में ऐसी कोई शनाख्त वाली चीज नहीं मिल रही थी। तो उस लड़की को, उसकी यानी रूबी को, पुलिस वालों ने वही बॉडी दिखाई और कहा देखो क्या तुम्हारे शौहर की कोई निशानी नजर आती इन टुकड़ों में। तो उसने डायरेक्टली मना कर दिया, बोले नहीं ये मेरी बॉडी, ये मेरे शौहर की नहीं है, मेरे शौहर में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो निशानी मेरे शौहर की थी इसके अंदर कोई चीज नहीं। लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई थी रूबी सी, जिसकी बुनियाद पर वो पकड़ी गई। चोर जब भी चोरी करता है कुछ ना कुछ निशानी तो छोड़कर ही जाता है। कोई भी कातिल जब कत्ल करता है अपनी निशानी को जरूर छोड़कर जाता है। चोर बगैर निशानी छोड़े जाता नहीं है, क्योंकि कितना भी कुछ शातिर क्यों ना, उससे कुछ ना कुछ निशानदेही वहीं पर रह जाती उसकी, जिसकी बुनियाद पर उसकी पकड़ हो जाती। रूबी को नहीं पता था कि जो मेरा शौहर जिसको मैंने कत्ल किया है उसकी टी शर्ट पीली थी, और पुलिस वालों ने कहा था देखो ये तुम्हारे शौहर की टी शर्ट वहीं पे मिली है तो नहीं। उसने कहा नहीं, इस रंग की, इस कलर की मेरा शौहर टी शर्ट भी नहीं पहनता था। जब उसके फोटो को चेक किया, मोबाइल को चेक किया गया, जब उसके गैलरी को चेक किया गया, मोबाइल में जितनी तस्वीरें थी, तस्वीरें सब देखी गई, तो उसमें एक एक के बाद दूसरी तस्वीर को पुलिस देखती चली जा रही थी। एक तस्वीर थी जिसमें पीली शर्ट पहने हुए था, वही टी शर्ट पहने हुए था जो उसकी डेड बॉडी के पास मिली थी, जो पहने हुए था वही टी शर्ट उसी तस्वीर में भी थी। तो पुलिस वालों ने कहा रूबी अब तुम पकड़ी गई हो, क्योंकि देखो जो तुम्हारा शौहर जो कत्ल हुआ है, जो ये पीली शर्ट पहना हुआ था, ये तस्वीर में ये वही पीली शर्ट है, अब तुम पकड़ी गई हो। तो मैं मुख्तसर में बताता हूं, ये जब पुलिस वालों ने उस पर धमकी लगाई, उससे कहा ये तुम ही अपने शौहर के कातिल हो, इसलिए कि जो टी शर्ट तुम इनकार कर चुकी हो नहीं पहनता, तुम्हारा शौहर तस्वीर में पहने हुए है, इससे वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि तुमने ही अपने शौहर को कत्ल किया। मेरे भाइयों, अब रूबी थी, पैर जमीन के नीचे, पैर के नीचे से जमीन खिसकती हुई उसे नजर आने लगी। रूबी ने कबूल भी कर लिया कि हाँ मुझसे ही कत्ल ये गलती हुई है। उसने कहा मुझसे ही गलती हो गई, लेकिन एक बात याद रखो, कोई भी गलती ऐसी नहीं होती है। गलतियां लिखने में तो हो सकती है, पढ़ने में भी गलतियां हो सकती है, किसी के मर्डर करने में गलती नहीं होती। कोई औरत बदचलन हो जाए, किसी गैर से ताल्लुक हो जाए, अगर वो कहे नहीं मुझसे गलती हो गई थी, इसमें गलती नहीं होती है, वो जानबूझकर ऐसा कदम उठाती है। अगर कोई बीवी अपने शौहर पर हाथ उठाती तो वो गलती नहीं होती, वो जानबूझकर ऐसा करती है, क्योंकि उससे पहले वो डिसाइड कर चुकी होती है। अगर किसी गैर महरम से उसके नाजायज ताल्लुकात भी बनते हैं तो उसकी गलती नहीं होती, बल्कि उसने कई दिन पहले, कई महीने पहले उसको जहन में बसा कर रखा था, उसने जानबूझकर कदम उठाया। लेकिन आजकल अक्सर औरतें, लड़कियां कह दिया करती थी मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, जिससे मैंने ऐसा कदम उठा दिया। नहीं, इसको भूल नहीं कहते। भूल तो सिर्फ लिखने में हो सकती है, पढ़ने में हो सकती है। गलत काम में कभी भूल नहीं होती, बल्कि वो काम जानबूझकर किया जाता है। अक्सर औरतें जानबूझकर करती, उसके बाद जब मन भर जाता पलटती है तो शौहर जान जाता तो कहती मुझसे गलती हो गई थी, भूल हो गई। ये इसको भूल नहीं कहते, इसको गलती नहीं कहते, बल्कि ये तो जाहिर है कि जानबूझकर ये काम किया है, जानबूझकर उसने किया, उसको गलती नहीं कहते। तो रूबी ने जब इकरार कर लिया कि हाँ कि मैंने ही कत्ल किया है, ये सारी बातें जब रूबी ने कबूल दी, सब कुछ मालूम चल गया, उसके बाद बड़ा अफसोस हुआ पुलिस वालों को, और कहा किस पर विश्वास किया जाए, किस पर यकीन किया जाए, कि कौन इस दुनिया के अंदर ऐसा है जो यकीन के लायक हो, जिस पर विश्वास भरोसा किया जाए। अगर आज के दौर में अगर बीबियां भी शौहर की नहीं होंगी तो कौन किसका हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं, आज के दौर में अगर कोई किसी का है तो वो सिर्फ माँ बाप है, उसके सिवा कोई नहीं रह गया। अगर कोई अपने औलाद को या कोई बच्चे को कोई अच्छी बात बता सकता है तो सिर्फ माँ बाप ही ऐसे हैं जो अपनी औलाद को एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, वरना दुनिया में कोई अपना नहीं रह गया। ये दुनिया इतनी शातिर, इतनी जालिम हो चुकी, इतनी कातिलाना चालें चलती कि आज बीबियां भी अपने शौहर की नहीं है, तो बड़े अफसोस की बात है। ये क़यामत का दौर है, कुर्बे क़यामत है, अपने आप को संभालो। अगर आपकी बीबी के अंदर कोई ऐसे लक्षण नजर आते हो तो फौरन अपनी अगर जान बचाना चाहो तो उससे अलग हो जाना, नहीं तुम्हारे भी टुकड़े सूटकेस के अंदर ही मिलेंगे। मेरे भाइयों, अब भी वक्त है, अल्लाह हम सब की जानी